Hello everyone, Namaste. Hi, this is Shami Herons and welcome back to Your Wealth India. So before we start, first of all, I'd like to wish all our viewers a very happy new year. May your life be blessed with lots and lots of prosperity. Today we are going to discuss a very important topic. It's called self-development for success in financial world. And today's episode is going to be very special because we are going to have a special guest with us. One of the reasons why the guest is so special because it's none other than my father. Apart from being a good parent, he has been a very good mentor and guru in my life. He's a retired railway gazetted officer and now spends most of his time in teaching the youth on investment in stock market and also coaches them on life lessons. He's a multifaceted personality. He's a public motivational speaker, and apart from that, he's a very strong stock market enthusiast and investor himself. So, without further ado, let's welcome Mr. Charles Herons. थैंक यू शम्मी, थैंक यू सो मच। और दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और नए वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि अभी मेरे बारे में बतलाया गया कि आई एम ए रिटायर्ड पर्सन, दैट मीन्स 60 प्लस। और 60 प्लस वालों के पास क्या होता है, ढेर सारा तजुर्बा, एक्सपीरियंस, ज्ञान। तो खैर वो तो ज़्यादा हो गया। तो मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस, जो जहाँ तक कि ये फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात है, तो उसमें मैंने क्या उतार चढ़ाव देखे, क्या तकलीफ़ों को फेस किया और कैसे सक्सेस को मेरे हाथ आया, ये सभी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आज का टॉपिक है सेल्फ डेवलपमेंट फॉर द सक्सेस इन फाइनेंशियल वर्ल्ड। तो दर्शकों, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बात बतला दूं कि आप लोग ये बात जान लीजिए कि योर इनकम विल नॉट एक्सीड योर पर्सनल ग्रोथ। मीन्स व्हाट? उसका मतलब ये है कि आपके अंदर जितनी वैल्यू है ना, उससे ज़्यादा आपका इनकम नहीं हो सकता है। अगर आपको अपना इनकम बढ़ाना है तो यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ बाई एडिंग मोर वैल्यू एंड मोर वैल्यू। हम लोग एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे अभी अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, तो इनका इनकम इतना ज़्यादा और इतना हाई क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर वैल्यू। ठीक है। तो अगर हम लोगों को भी अपना वैल्यू बढ़ाना है तो हम लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, अपना वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में आपकी क्या वैल्यू है? क्या आपको देख के ही लोग दौड़ते हुए आपके पास आते हैं कि अपना ऑटोग्राफ दीजिए या हम लोगों के साथ सेल्फी लीजिए, या ढेर सारी कंपनी आपको क्या ऑफ़र देती है कि आप हमारे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए? नहीं ना। दैट मीन्स योर वैल्यू इज़ ज़ीरो। सो बुरा मत मानिए, लेकिन वो सही बात है कि जब तक वो चीज़ें हम लोगों के पास में नहीं आती ना, हमारा वैल्यू ज़ीरो ही होता है। देन हाउ टू डेवलप आवर सेल्फ? बाय फॉलोइंग सर्टन रूल्स, डिसिप्लिन एंड प्रिंसिपल्स। सो finally we have to grow our knowledge. How? By reading more number of self development books, attaching ourselves to the successful people by attending seminars, webinars, etc., that too consistently in a disciplined manner. Gradually our value increases and people start noticing us. As much as our value increases, we become more famous in public and in social media, and the success story starts from there. Share market, first of all, we have to understand that it is the game of our mindset. 80% is our mindset game and remaining 20% is knowledge, experience and skill. 95% of people, they fail in stock market. Simply they lose their money. Why? Because there is a common mistake every person they do. What is that mistake? That is
instant gratification means they want immediate money by quick fixing, by hook or crook. They want immediate money, so they go for scalping, trading, intraday, future and options. Just remember, Warren Buffett once told us that derivatives are the financial weapon for mass destruction, and that is true. तो शेयर मार्केट में सफलता पाने के लिए फिर हम लोग करें तो क्या करें? शेयर मार्केट में सफलता पाने के लिए व्हाट शुड वी डू? तो यहाँ मैं बतला दूँ कि हर कोई किसी न किसी गॉड को मानता है, उसमें विश्वास करता है और प्रे करते रहता गॉड के पास कि उनको सक्सेस दिलाएं, जो कि कभी कभार हो जाता है, लेकिन वो सभी लोग ये रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि गॉड का जो अवतार इनकारनेशन जो है ना, वो हमारे सामने है, जो हमें दिखता है। हम में से आज तक किसी ने गॉड को देखा नहीं है, फिर भी उसमें विश्वास करते हैं। लेकिन जो गॉड का जो अवतार जो हमारे सामने है, वो उसे हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, रियलाइज़ नहीं करते। और वो क्या है? दैट इज़ नेचर, प्रकृति में क्या है? उसमें का साइकिल जो दिन के बाद रात के बाद दिन, छाँव, धूप, सुख दुख, मौसमों का बदलना, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। बस हम लोगों को वही चीज़ देख के, जो प्राकृतिक नियम है उसको पकड़ के हम लोगों को वही फॉलो करना है। तो हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? भगवान के नियम। प्राकृतिक के नियम क्या है? भगवान के नियम। वी आर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ गॉड। तो प्राकृतिक का नियम क्या कहता है? प्राकृतिक का नियम ये कहता है कि पहले बीज बो, फिर बाद में फसल काटो। पहले फसल नहीं काटा जाता है, पहले बीज बोया जाता है। लेकिन लोग क्या है कि पहले फसल चाहते हैं, बाद में बीज बोएंगे। पहले इनकम आने दो, बाद में मैं इन्वेस्ट करूँगा। सो दैट इज़ नॉट एक्चुअली करेक्ट। और अभी मैं जो फाइनेंशियल वर्ल्ड के बारे में जो बात कर रहा हूँ, सो थोड़ा स्पेसिफिकली मैं शेयर मार्केट का कोट कर दे रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल वर्ल्ड। तो जैसे हम लोग अभी द लॉ ऑफ नेचर की जो मैं बात कर रहा था, तो उसमें क्या है कि अगर हम लोग एक पेड़ का एग्जांपल लें, तो पेड़ का बीज लगाने के लिए पहले वहाँ की ज़मीन का ठीक देख रेख करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर अच्छी क्वालिटी का बीज डालना पड़ता है, फिर उसमें पानी डालना पड़ता है, फिर खाद डालना पड़ता है, फिर गाय भैंस बकरियों से बचाने के लिए उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। फिर जब पौधा बड़ा होता है तो उसमें कीड़े ना पड़े करके उसमें पेस्टिसाइड्स के फवारे छोड़ने पड़ते हैं। फिर और जब बड़ा हो जाता है तो कुछ सालों के बाद एक समय ऐसा आता है जब हमको उसमें पानी वानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? तब तक वो पौधा इंडिपेंडेंट हो जाता है और कुदरत से अपना खाना लेने के काबिल बन जाता है। और इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते और कुछ वर्षों के बाद में जब उसके ये में पहले फल लगते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं रहते, थोड़े रहते हैं। लेकिन समय जैसे जैसे गुजरता है वो फलों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। शुरू में हम उसका केयर कर रहे थे, अब वो हमारा देख रेख कर रही है इतना। सो ये बहुत अच्छा उदाहरण है प्राकृतिक के नियम का। लेकिन ऐसा लोग नहीं करते, उनको तो क्या है, तुरंत का तुरंत पैसा चाहिए। एक इन्वेस्टर एक फार्मर के जैसे होता है। जैसे फार्मर कोई अनाज उगाने के पहले, फसल उगाने के पहले अपने खेतों की तैयारी करता है, खुदाई करता है, जुताई करता है, वहाँ से कंकड़ पत्थर, जंगली पौधे और झाड़ियों को निकाल कर फेंकता है। उसी तरह इन्वेस्टर भी अपने पोर्टफोलियो की तैयारी करता है कि मैं पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स रखूं, डाइवर्सिफाई कैसे करूं, किस किस क्वालिटी के कौन कौन सी कंपनियां को खरीदूं, कितना खरीदूं, ये प्लानिंग करके वो अपने पोर्टफोलियो की तैयारी करता है। जिस तरह किसान खेत की तैयारी करता है, फिर खेत की तैयारी होने के बाद किसान क्या है, उसमें अच्छी क्वालिटी के बीज डालता है। और इधर इन्वेस्टर क्या करता है, वो अच्छी क्वालिटी के कंपनियों को खरीद करके अपने पोर्टफोलियो में रखता है। फिर इधर के किसान का
फसल उगने लगता है, इधर इसका प्रॉफिट चालू हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद में एक प्रॉब्लम आता है दोनों के पास, फार्मर और इन्वेस्टर के पास। फार्मर के पास क्या कि उसके पौधों, अच्छे पौधों के साथ साथ जंगली पौधे भी उगाए हैं, और इन्वेस्टर के साथ क्या कि उसके स्टॉक्स में, उसके पोर्टफोलियो में जो जितने स्टॉक्स थे उसमें अच्छे अच्छे स्टॉक्स के साथ कुछ कुछ स्टॉक्स नेगेटिव में टर्न हो गए हैं, जो अब लॉस देना चालू किए हैं। तो यहाँ किसान क्या करता है, जंगली पौधों को उखाड़ कर बाहर फेंकना पड़ता है उसको। अगर ऐसा नहीं करे तो फिर वो जंगली पौधे अच्छे पौधों को खा के उसको नुकसान पहुंचाएंगे अच्छे पौधों को। और इधर अगर इन्वेस्टर नेगेटिव स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से निकाल कर बाहर नहीं करे तो अच्छे जो प्रॉफिट देने वाले स्टॉक्स हैं उनका प्रॉफिट भी खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा इनके वजह से। तो ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ती है। तो बिल्कुल किसान और इन्वेस्टर दोनों का क्रियाकलाप प्राय एक ही होता है, लेकिन लोगों को इन सब से मतलब कहाँ होता है। उनको तो एक ही चीज़ से मतलब होता है कि उन्हें जल्द से जल्द पैसा कैसे मिले, कैसे प्रॉफिट कमाए। तो इसीलिए किसी ने खूब कहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अगर ऋतु आने से पहले आप पेड़ से फल चाहते हैं, उसमें कितना भी पानी डाल दे, कितना भी खाद डाल दे, लेकिन फल नहीं आएगा। फल कब आएगा? जब ऋतु आएगी। उसी तरह जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं कि तो तुरंत का तुरंत हम लोग फ़ायदा देखते हैं, वैसे थोड़ी ना होता है, वैसे नहीं होगा। वो आएगा कब? जब एवरीथिंग इज़ ओके, सही समय सही, वो अपने टाइम में। शुरुआत में क्या होता है कि हम लोगों को बहुत पेशेंस का, दिस इज़ गेम ऑफ पेशेंस, हम लोगों को बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। शुरू में इतना कम पैसा उसमें प्रॉफिट में होता है कि हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ता है कि हमारा इनकम भी हो रहा है या नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरते जाता है, बाद में वो इतना ज़्यादा बढ़ने लगता है ना, जस्ट लाइक लीव्स एंड बाउंड्स, इतना भयंकर बढ़ता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो finally, to get success in the financial world depends upon the state of our mind, जो कि मैंने पहले जिक्र कर दिया था कि ये 80% हमारे माइंडसेट के ऊपर है। और हम लोगों को सक्सेस पाने के लिए क्या करना है कि अपने नॉलेज को बढ़ाना है, अपने अंदर की वैल्यू को बढ़ाना है। हमारा वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा ना, हमारा प्रॉफिट वैसे बढ़ेगा। और ये ऐसे ही होता नहीं है। दिस लुक्स वेरी सिंपल बट इट इज़ नॉट सिंपल, बिकॉज बहुत लोगों के पास पेशेंस की बहुत कमी होती है, और यहाँ गेम पेशेंस का है। आप जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे ना, आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन लोगों को क्या है कि हर चीज़ जल्दी चाहिए, इसी में जल्दी मिलता तो नहीं है, लेकिन उनके पास जो है वो भी जल्दी चले जाता है। तो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, यू मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ नेचर, जो कि एक पेशेंस। आप लोग देखते हो ना कि अभी जो मैंने कहानियाँ बतलाई फार्मर और इसका और पेड़ पौधों को, बिल्कुल आप वो, दैट इज़ रूल ऑफ गॉड, आप वो फॉलो कीजिए बस। और ये बिल्कुल आसानी से आपका there will be no any loss in your financial world, neither in share market. So if you will follow all these things, just अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए। पेशेंस रूल, इमोशन कंट्रोल, अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, देन यू विल बिकम हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं, अगर आपको मेरे इस स्पीच से कुछ फ़ायदा नज़र आता हो, हालांकि फ़ायदा इसमें तो बिल्कुल छिपा हुआ है, मैं ऐसे एक बतला दूं कि मैंने बहुत सारे बुक्स का स्टडीज़ किया, मोर देन थाउजेंड्स, एंड बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के सुनिए, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस। तो उसमें जो मैंने पाया, द लॉ ऑफ नेचर इज़ द बेस्ट, वेरी सिंपल। लोग बहुत कॉम्प्लिकेशन में फंस जाते हैं, और कॉम्प्लिकेशन में फंस के बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाते हैं ना, उनको मालूम नहीं रहता क्या करना। यू मेक योर लाइफ वेरी सिंपल, सिंपलिसिटी इज़ द गेम। आप सिंपल बनाइए, सीधे साधे, यू फॉलो द लॉ ऑफ नेचर एंड यू विल बी हैप्पी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग ज़रूर इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा सिर्फ यही, इसी में नहीं, बहुत सारे सब्जेक्टों के ऊपर अच्छी पकड़ है। मैं अच्छे चीज़ें, ऐसी बातें आप लोग को बतलाना चाहता हूँ कि शायद ही आपको बुक में या कहीं और मिले। सो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए बस ये कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सो नमस्कार।